وزیر اعظم کے صرف ایک پیر میں چپل تھی، دوسرے میں نہیں، وہ بھی بے نظیر بھٹو جیسی وزیر اعظم۔ یہ منظر ہے 20 ستمبر 1996 کی اس رات کا، جب پاکستان کی اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اپنے بھائی میر مرتضی بھٹو کی موت پر شدت غم سے نڈھال ہو کر کراچی کے علاقے کلفٹن کے میڈیسٹ ہسپتال پہنچی تھیں۔ 42 سالہ مرتضی بے نظیر کی ہسپتال آمد سے چند گھنٹے قبل ہی اپنے محافظین اور پولیس اہلکاروں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 گولیاں لگنے کے بعد شدید زخمی حالت میں ہسپتال لائے گئے تھے اور طبی امداد فراہم کیے جانے کے دوران دم توڑ گئے تھے۔ لیکن کیا یہ انتہائی متنازع اور ہمیشہ پر اسرار سمجھی جانے والی کارروائی واقعی پولیس مقابلہ تھا یا مرتضی بھٹو کا قتل ایک سوچی سمجھی سازش تھا؟ آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ اور میں ہوں سعد سہیل۔ یہ اور ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات اس واقعے کو رپورٹ کرنے والے صحافی، دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ، کراچی پولیس سے لے کر برطانوی پولیس، اسکاٹ یارڈ تک کے تمام تفتیشی افسران، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حکام، عدالتیں، تحقیقاتی کمیشن اور سب سے بڑھ کر بھٹو خاندان 24 برس سے تلاش کر رہے ہیں۔ اس کہانی پر موقف جاننے کے لیے مرتضی بھٹو کے خاندان، خاص طور پر غنوہ بھٹو سے رابطے کی بارہا کوششیں کی گئیں، مگر نہ تو وہ دستیاب ہو سکیں اور نہ ہی فون پر بھیجے گئے کسی پیغام کا جواب دیا گیا۔ مرتضی بھٹو کیسے، کن حالات میں اور کیوں ہلاک ہوئے، یہ جاننے کے لیے بھٹو خاندان کی نجی اور سیاسی زندگی پر ایک نظر ڈالنا ضروری ہے، ورنہ شاید یہ کہانی سمجھ میں نہ آئے۔ 18 ستمبر 1954 کو پیدا ہونے والے میر غلام مرتضی بھٹو پاکستانی سیاستدان ذوالفقار علی بھٹو کی دوسری اولاد اور بڑے صاحبزادے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی شادی 1943 میں شیریں امیر بیگم سے اور دوسری شادی 1951 میں کرد نژاد ایرانی نصرت بھٹو سے ہوئی۔ ذوالفقار اور نصرت بھٹو کے 4 بچے تھے، جن میں بے نظیر بھٹو، میر مرتضی، صنم بھٹو اور شاہ نواز بھٹو شامل تھے۔ مرتضی بھٹو نے کراچی گرامر اسکول سے ابتدائی تعلیم کے بعد پہلے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی اور پھر برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی۔ 5 جولائی 1977 کو پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق نے مرتضی کے والد اور پاکستان کے نویں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ کر مارشل لاء نافذ کیا، اور جب 16 ستمبر 1977 کو ذوالفقار بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو انہوں نے میر مرتضی کو ملک سے باہر بھیج دیا۔ 4 اپریل 1979 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ جنرل ضیاء کی فوجی حکومت نے نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو کو گرفتار کر لیا اور یہ دونوں خواتین طویل عرصے تک اسیر اور نظر بند رکھی گئیں۔ جب ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی تو مرتضی اور شاہ نواز بھٹو لندن کے ایک فلیٹ میں رہ رہے تھے۔ اس کے علاوہ دونوں بھائیوں نے افغانستان اور شام سمیت کئی دیگر ممالک میں بھی وقت گزارا۔ افغانستان میں قیام کے دوران مرتضی اور شاہ نواز نے اپنے والد کا تختہ الٹے جانے کا انتقام لینے کے لیے مبینہ طور پر الذوالفقار نامی تنظیم قائم کی۔ اس تنظیم میں پیپلز پارٹی اور اس کی ذیلی طلبہ تنظیم PSF کے ارکان شامل تھے۔ اس وقت کے اخبارات کے جائزے، سیاستدانوں، پولیس اور سرکاری اداروں کے موجودہ اور سابق افسران کی غیر رسمی گفتگو کے مطابق الذوالفقار مرتضی بھٹو یا ان کے ساتھیوں نے قائم کی یا نہیں، مگر یہ تنظیم وجود ضرور رکھتی تھی اور پاکستان کے ریاستی اداروں کے پاس اطلاعات اور شواہد تھے کہ الذوالفقار کے رابطے انڈین اور افغان خفیہ اداروں سے بھی تھے۔ الذوالفقار نے مزاحمت کے لیے مسلح جدوجہد کا رستہ اپنایا اور 2 مارچ 1981 کو PIA کی پشاور جانے والی پرواز PK 326 کو ہائی جیک کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہونے والی یہ فلائٹ کابل لے جائی گئی، جہاں فوجی افسر میجر طارق رحیم کو جہاز پر ہی قتل کر کے ان کی لاش رن وے پر پھینک دی گئی۔ ان ہائی جیکرز نے جنرل ضیاء کی فوجی حکومت کو دھمکی دی کہ جن 53 افراد کی رہائی کا وہ مطالبہ کر رہے تھے، اگر انہیں رہا نہ کیا گیا تو جہاز میں سوار تمام 143 افراد کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ 13 دن تک جاری رہنے والی یہ ہائی جیکنگ اس وقت ختم ہوئی جب ہائی جیکرز کے مطالبات کی منظوری کے بعد مسافروں کو رہا کر دیا گیا۔ مرتضی بھٹو کا خاندان، خاص طور پر ان کی صاحبزادی فاطمہ بھٹو، ہمیشہ الذوالفقار کی مسلح کارروائیوں یا ان سے مرتضی بھٹو کی وابستگی کی تردید
और दिफा करते रहे हैं और इस इल्जाम को तस्लीम करने पर कभी तैयार दिखाई नहीं दिए। दूसरी जानिब मुर्तजा भुट्टो की बहन बेनजीर भुट्टो वालदा के साथ पार्टी की शरीक सरबराह के तौर पर पार्टी की क़ियादत और सियासी जिद्दोजहद करती रहीं और 17 अगस्त 1988 को तैयारे के हादसे में फौजी आमिर जनरल ज़िया की हलाकत के बाद 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में बेनजीर पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आज़म बन गईं। इस दौरान पीपल्स पार्टी की अंदरूनी कशमकश भी पूरे जोर शोर से जारी रही। बेनजीर को अपनी जमात के बाज नाराज अरकान का सामना रहा, जिनका मौक़िफ़ था कि उन्होंने इक़्तिदार को फ़ौक़ियत देते हुए अपने वालिद जुल्फ़िकार भुट्टो की सियासी रविश तर्क कर दी है और पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट से समझौता कर लिया है। खुद उनके भाई मुर्तज़ा भुट्टो का मौक़िफ़ भी यही रहा कि बेनज़ीर और उनके शौहर आसिफ ज़रदारी की पॉलिसियों की वजह से पार्टी को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा और ये अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी नहीं रही। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कादिर पटेल भी बहन भाई के दरमियान इख्तलाफात को तस्लीम करते हैं। उन्होंने बताया कि इख्तलाफ था मगर आखिरी दिनों में बहुत कम रह गया था और दोनों जानिब बेइंतहा लचक पैदा हो गई थी। बेनज़ीर भुट्टो पर्ची के जरिए तब्दीली पर यकीन रखती थीं और जमहूरी तरीकों की बात करती थीं। बीबी डील नहीं डायलॉग करती थीं। डील का तासुर कतन नहीं था। अब्दुल कादिर पटेल ने कहा कि बाद में मुर्तज़ा भुट्टो भी ये मान गए थे और खुद भी सियासी निज़ाम का हिस्सा बने, इलेक्शन लड़ा और पार्लिमानी तर्ज़े सियासत इख्तियार की। मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथियों का ख्याल रहा कि आसिफ ज़रदारी से शादी के बाद बेनज़ीर भुट्टो जब पहली बार वज़ीर आज़म बनी तो ओहदों और वजारत पर फायज बाज अरकान की मुबैना बदअनवानियों और बेकायदगियों की वजह से पीपल्स पार्टी की साख को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। इस मौक़िफ़ को रद्द करते हुए कादिर पटेल ने कहा, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी, सियासत में तो आप मुखालफत करते ही हैं, उनके ख़ानदान में कोई खलीज नहीं थी। मगर मुर्तज़ा भी बेनज़ीर और आसिफ ज़रदारी पर खुलेआम तनकीद करते और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या जलसे जुलूस, वो अपनी बहन की हुकूमत की पॉलिसियों, तर्ज़ सियासत और मुबैना बदअनवानियों पर कड़ी नुक्ताचीनी करने से नहीं चूकते थे। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं कि एक जमाना था जब मुर्तज़ा भुट्टो इंतहाई मतलूब शख्स भी थे, फिर वही मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान आकर इलेक्शन भी लड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें तब्दील होती हैं। पीपल्स पार्टी के बाद सख्त गिर अनासिर में ये सोच भी परवान चढ़ी कि दरअसल बेनज़ीर के बजाय मुर्तज़ा भुट्टो ही को जुल्फ़िकार भुट्टो का सियासी जानशीन होना चाहिए। पार्टी की संदरूनी कशमकश के नतीजे में बेनज़ीर बिलाखिर अपनी वालदा को ओहदे से हटाते हुए खुद पार्टी की मुकम्मल सरबराह मुंतखब हो जाने में कामयाब हुई। मगर पार्टी में नाराज अरकान की सोच फिर भी बाकी और बरकरार रही और इन अनासिर ने मुर्तज़ा भुट्टो की क़ियादत में पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो ग्रुप के नाम से नई सियासी जमात ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कायम की कि दरअसल यही जुल्फ़िकार भुट्टो की असल जमात है। बिलाखिर खुद नुसरत भुट्टो ने भी अपने बेटे मुर्तज़ा की हिमायत का ऐलान किया और इस वक्त तक उनकी हिमायत करती रहीं जब तक वो शदीद बीमारी की वजह से अवाम की निगाहों से ओझल नहीं हो गईं। काबुल में जलावतनी के दौरान 1981 में मुर्तज़ा भुट्टो ने दरी नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के एक अफसर की साहबजादी फौजिया फसीहुद्दीन से शादी की, जिनसे उनकी बड़ी साहबजादी फातिमा भुट्टो 29 मई 1982 को पैदा हुई। फातिमा भुट्टो 3 बरस की थीं कि मुर्तज़ा भुट्टो और फौजिया भुट्टो में अलहदगी हो गई और मुर्तज़ा फातिमा भुट्टो के हमरा शाम मुंतकिल हो गए। शाम में मीर मुर्तज़ा भुट्टो की मुलाकात गनवा भुट्टो से हुई और 1989 में दोनों ने शादी कर ली। गनवा भुट्टो मुर्तज़ा भुट्टो के फर्जंद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर की वालदा हैं। मुर्तज़ा भुट्टो 18 अक्टूबर 1993 के इंतखाबात में PS 31 लाड़काना के अपने आबाई जिले से सूबाई असम्बली की नशिस्त पर रुकने सिंध असम्बली मुंतखब हुए और वतन वापसी पहुँचे तो यहाँ उनकी बहन बेनज़ीर भुट्टो के हुक्म पर उन्हें दहशत गर्दी के इल्जामात के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। रिहा हुए तो उन्होंने बहन के मुकाबले में अपनी सियासी कुव्वत का इजहार करने की गर्ज से आजादाना नक्लो हरकत का आगाज किया। इनकलाबी ज़हनियत और जारहाना अंदाज के हामिल तंदुखो और तेज मिजाज मुर्तज़ा भुट्टो सिंध असम्बली के रुकन बनकर पार्लिमानी सियासत का हिस्सा बन तो गए थे, मगर उनके जारहाना रवैये में पाकिस्तान के रियासती और सरकारी इदारों की जानिब नरमी कभी नहीं आई।
अमली सियासत उन्हें जलसागाहों, इजलासों, सियासी मेल मुलाकात और अवामी इज्तिमात तक लेकर तो आई थी, मगर जारे मिजाज मुर्तजा भुट्टो में सियासी रहनुमाओं की सी समझौताबाजी या मसालेहाना अंदाज कभी नहीं आ सका। रियासती और सरकारी इदारों की जानिब उनका शदीद रद्द अमल कभी नरम मिजाजी की जानिब माइल नहीं रहा, जिन्हें वो अपने वालिद का कातिल समझते और कहते रहे। एक बार कराची से अपने आबाई शहर लाड़काना में खानदानी कब्रिस्तान गड़ी खुदा बख्श में वालिद की कब्र पर जुलूस की सूरत में जाने के उनके फैसले ने बेनजीर भुट्टो हुकूमत के लिए सियासी खतरे की घंटी बजाई, तो हुकूमत ने फैसला किया कि मुर्तजा भुट्टो को लाड़काना जाने से रोका जाए। एक साबिक पुलिस अफसर ने, जो अब मुल्क में नहीं रहते, ने बताया कि वजीर आजम की हिदायत पर सूबाई वजीर आला सैयद अब्दुल्ला शाह, जो मौजूदा वजीर आला सिंध के वालिद भी थे, ने पुलिस और जिले इंतजामिया को अहकामात दिए कि मुर्तजा भुट्टो का काफिला रोका जाए। एक सीनियर पुलिस अफसर ने याद दहानी करवाई कि SSP रमजान चना पहले पुलिस अफसर थे जिसने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर मुर्तजा भुट्टो ने किसी को खातिर में लाए बगैर अपना सफर जारी रखा। ये सलूक लाड़काना तक उनका काफिला रोकने की कोशिश करने वाले हर अफसर के साथ हुआ। पुलिस अफसरान को सड़क पर अपनी इज्जत बचाना मुश्किल लगने लगता था। पाकिस्तान से बाहर मुकीम एक और अफसर साबिक SP लियारी फयाज खान कहते हैं कि थाने जाकर अपने हामियों को छुड़वा लेना तो उनका मामूल बन गया था। एक बार तो खुद मेरे साथ हुआ। मैंने मुर्तजा भुट्टो के साथ ही उस्ताद ताजू को गिरफ्तार किया, फिर इसी खदशे के तहत उसे किसी और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया कि मुर्तजा भुट्टो उसे छुड़वाने की कोशिश न करें। मुर्तजा भुट्टो खुद अपने साथियों के साथ पहुंचे ताकि ताजू को छुड़वा सकें। मेरे अमले के साथ उन सब ने बेइंतहा बदसलूकी की थी। अगर ताजू वहां होता तो उसे छुड़वा ले जाते। जब ये सब हो रहा था, मुर्तजा भुट्टो के करीबी हलके में ऐसे अनासर भी थे जिनके बारे में पाकिस्तानी इदारों को शुबा था कि वो मुबैना तौर पर बराह रास्त इंडियन या अफगान खुफिया इदारों से राब्ते में थे या रह चुके थे। उस वक्त कराची 1990 की दिहाई की मुसल्ला शोरिश से संभल ही रहा था और 1992 से शुरू होने वाला फौज, पुलिस और रियासती इदारों का ऑपरेशन क्लीन अप अपने इख्तितामी मराहिल में था। डॉक्टर शुएब सडल मुर्तजा भुट्टो की हलाकत और कराची ऑपरेशन के वक्त कराची पुलिस के सरबराह यानी DIG कराची थे। डॉक्टर सडल ने कहा कि ऐसे माहौल में मुर्तजा भुट्टो और उनके साथी असलहे से लेस अपने मुहाफिजीन के साथ आजादाना नक्लो हरकत करते थे और थानों या पुलिस मराकज में ये जोर जबरदस्ती बढ़ती जा रही थी। पुलिस ने बड़ी कुर्बानियों के बाद कराची में किसी हद तक अमन कायम कर दिया था और मुसल्ला गिरोहों की खुलेआम नक्लो हरकत इस नाजुक अमन को नुकसान पहुंचा सकती थी। वो बताते हैं कि मैंने कह रखा था कि जो कानून हाथ में ले उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन चूंकि सूरत हाल इससे पहले ही से बिगड़ रही थी, इसलिए फैसला हुआ कि इस किस्म की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसलिए अब मुर्तजा भुट्टो और उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने उसी रात हुक्म दिया कि जो भी हो गिरफ्तार कर लिया जाए। वो याद करते हैं कि जब हुकूमत के नोटिस में लाया गया तो वजीर आला अब्दुल्ला शाह ने कहा कि पहले वजीर आजम बेनजीर भुट्टो से पूछ लें। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जब आप उसको पकड़ेंगे तो हमारे मुखालफीन कहेंगे कि बेनजीर भुट्टो ने गिरफ्तार करवा दिया। कोई यकीन नहीं करेगा कि पुलिस ने अपने तौर पर फैसला किया था। शुएब सडल ने बेनजीर भुट्टो के अल्फाज दोहराते हुए कहा, इसलिए जरा रुक जाएं, मैं 2-4 रोज में कराची आती हूँ तो फिर कुछ करते हैं, तब तक सोच लेते हैं। शुएब सडल बताते हैं कि फिर वजीर आजम से मशवरे के बाद मेरे हुक्म में इतनी तरमीम जरूर हुई कि मीर मुर्तजा के अलावा उनके जो भी साथी हों, जो मिलता है गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके साथ ही मुर्तजा भुट्टो के साथियों की रिहाइश गाहों और ठिकानों पर छापों का सिलसिला शुरू हुआ। मुर्तजा भुट्टो के साथियों में पुलिस को मतलूब सबसे नामवर और नुमाया शख्स थे अली सनारा। रियासती इदारों को इत्तला और शुबा था कि अली सनारा किसी गैर मुल्की इदारे से राब्ते में है। उस वक्त तक किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर रॉकेट हमलों, बम धमाकों और दहशत गर्दी से जुड़ी कई वारदातें हो चुकी थी। अली सनारा ऐसे कई वाकयात में नामजद और रियासती इदारों को मतलूब थे। इन हालात में कराची ऑपरेशन से शोहरत हासिल करने वाले इंस्पेक्टर जीशान काजमी ने 16 सितंबर 1996 को अली सनारा को गिरफ्तार कर लिया, मगर अंदेशा था कि मुर्तजा भुट्टो के साथी अली सनारा को छुड़वाने की कोशिश करेंगे और खुदशात के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो ने कार्रवाई की।
मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल से कबल कराची में तैनात होने वाले एक अफसर ने बताया कि कराची ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों पुलिस मुकाबले हो चुके थे, जिनमें पुलिस के हाथों मुबैना तौर पर मावराए अदालत मारे जाने वालों की बड़ी तादाद सियासी कारकुनान की होती थी और इन मुकाबलों को जाली पुलिस मुकाबला कहा जाता था। इन मुकाबलों में इंस्पेक्टर जीशान काजमी जैसे पुलिस अफसरान हर आए दिन शरीक होते थे और अली सिनारा को भी जीशान काजमी ने उठाया था। मुर्तज़ा भुट्टो को खदशा था कि कहीं अली सिनारा को भी किसी मुबैना जाली पुलिस मुकाबले में ना मार दिया जाए। अपने आखिरी खिताब में मुर्तज़ा भुट्टो ने इस खदशे का बरमला इजहार भी किया था। अगले रोज सुबह कराची जिमखाना और सिंध असेंबली की इमारत के करीब 2 मुख्तलिफ बम धमाके हुए। FIR नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज हुई, मगर शुबे की सुई अल जुल्फ़िकार के गिर्द घूमने लगी। इस शक पर कि दोनों धमाके सिनारा की गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल हैं, 70 क्लिफ्टन के अलावा तमाम मकामात पर मुर्तज़ा भुट्टो के साथियों के ठिकानों पर पुलिस के छापों का सिलसिला जारी रहा। इसी कशीदा सूरत हाल में जुम्मा 20 सितंबर का वो दिन आ गया जब मुर्तज़ा भुट्टो को जलसे के लिए सुरजानी टाउन जाना था। उस रोज 2 फैसले हुए, एक पुलिस ने किया और एक मुर्तज़ा भुट्टो ने। मुर्तज़ा भुट्टो का फैसला था कि वो जलसे से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और पुलिस ने फैसला किया कि जब मुर्तज़ा भुट्टो और उनके साथी घर से निकलेंगे तो उन्हें रोककर उनके साथियों के असलहे के लाइसेंस की पड़ताल की जाएगी। जरूरी हुआ तो कानून को मतलूब अफराद को हिरासत में लिया जाएगा। SSP साउथ वाजिद दुरानी उस वक्त कराची के जुनूबी जिले में पुलिस के सरबराह थे। DIG शुएब सडल और SSP वाजिद दुरानी के ताल्लुकात मामूल पर नहीं थे। शुएब सडल कई मौक़ों पर सहाफ़ी जाफर रिजवी से रस्मी और गैर रस्मी और रिकॉर्डेड गुफ्तगू में भी इसका इतराफ कर चुके हैं, जबकि कम अज कम एक बार SSP वाजिद दुरानी भी ये तस्लीम कर चुके हैं। जलसे में जाने के लिए मुर्तज़ा भुट्टो 70 क्लिफ्टन से निकले तो पुलिस की नफरी 70 क्लिफ्टन के सामने शारा ईरान पर पहले से मौजूद थी, जो 2 तलवार वाले चौराहे से साहिल समंदर की जानिब जा रही है, जहां अब तजारती मरकज पाक टावर्स की इमारत है। इस टीम में उस वक्त के SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल, ASP शाहिद हयात और ASP राय मोहम्मद ताहिर शामिल थे। पुलिस ने मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले का रास्ता रोकना चाहा, मगर मुर्तज़ा भुट्टो के काफिले में शामिल कोई भी गाड़ी रुके बगैर चलती ही चली गई और पुलिस की कोशिश नाकाम हो गई कि मुर्तज़ा भुट्टो या उनके साथियों के असलहा लाइसेंस की पड़ताल कर ली जाए। कराची पुलिस के उस वक्त के एक ऐसे अफसर ने, जो बाद में IGP बने, बताया कि SHO क्लिफ्टन हक नवाज सयाल थे तो बड़ी बड़ी मूंछों वाले थानेदार, मगर तसादुम, झड़प और महाजराई से गुरेज करते थे और गुरेज ही करते रहने के कायल भी थे। शुएब सडल, जिनकी सरकारी रिहाइशगाह DIG हाउस सड़क की ऐन दूसरी जानिब यानी 70 क्लिफ्टन के बिल्कुल सामने वाक़ थी, ने कहा कि मुझे तो इस एक्टिविटी का पता ही नहीं था। मैं तो अपने कोलीग DIG गुलाम मोहम्मद मलकानी के साथ वॉक करके वापस आया तो सब कुछ मामूल के मुताबिक लगा। कराची ऑपरेशन की वजह से मोबाइल फोन बंद थे। घर में आया तो स्टाफ ने बताया कि जनरल बाबर की कॉल आई थी। जनरल बाबर ने कराची के धमाकों पर कौमी असेंबली के लिए तफसीलात तलब की। चूँकि दोनों धमाके डिस्ट्रिक्ट साउथ में हुए थे तो जनरल बाबर को तफसीलात भेजने के लिए मैंने ऑपरेटर से कहा कि SSP साउथ वाजिद दुरानी को फोन पर लो। वो बताते हैं कि दुरानी से बात हुई तो मैंने धमाकों के बारे में बात करके ऐसे ही पूछ लिया कि आप हैं कहाँ। उसने कहा कि सर आपके करीब ही हूँ। मैंने पूछा कि कितना करीब, तो उसने बताया कि ट्रैफिक पुलिस चौकी पर जो एक फरलांग से भी कम फासले पर है। मैंने कहा इतने करीब हो तो अंदर आ जाते, तो इस पर दुरानी ने बताया कि सर आपको बता नहीं सके, 5 बजे मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला रोकने की कोशिश की गई मगर वो रुके नहीं थे, तो अभी मैं खुद आया हूँ। अब वो जलसा खत्म करके सुरजानी से वापस आएंगे। मैं उन्हें जानता भी हूँ तो मैं इस सूरत हाल को संभाल लूंगा। शुएब सडल ने कहा कि वाजिद दुरानी ने उन्हें बताया कि अब मंसूबा ये है कि जब मुर्तज़ा भुट्टो का काफिला वापस आएगा तो पुलिस उनकी गाड़ी को तो अंदर जाने देगी, मगर पीछे वाली गाड़ियों को रोक लिया जाएगा ताकि असलहा के लाइसेंस की पड़ताल की जा सके। शुएब सडल ने बताया तो मैंने कहा वाजिद ये इस तरह से नहीं होगा, मगर उन्होंने कहा कि सर मैं इसीलिए खुद आया हूँ कि वो मुझे जानते हैं और मैं हैंडल कर लूंगा। उधर मुर्तज़ा भुट्टो सुरजानी टाउन जाने से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे और उन्होंने वाज़े तौर पर कहा ये पुलिस अफसर तो इस काबिल नहीं कि मुमलिकत की वर्दी पहने, ये मुजरिम है। उन्होंने कराची में नस्ल कुशी की है, लातादाद लोगों को मावराए अदालत मार डाला है। अपने दफातर में रहने का उनका वक्त अब खत्म हो रहा है, अब उनका जेल जाने का वक्त आने वाला है। मैं उन्हें चैलेंज करता हूँ कि आओ और मुझे गिरफ्तार करो,
अगर वो उसके बाद के नताइज भुगत सकते हैं, सियासी नताइज। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन गए और वहां भी खिताब में कहा कि आपका इतनी बड़ी तादाद में आना अली सिनारा के हक में रेफरेंडम है। ये वो पीपल्स पार्टी है जिसने बानी कायद के कातिलों को साथ बिठा लिया है। अगर तुम्हारा ख्याल है कि अली सिनारा जैसे बहादुर कारकुनों को गिरफ्तार करके डरा सकोगे तो ये तुम्हारी गलती है। 3 दिन से तुम कह रहे हो मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लोगे। मुर्तजा भुट्टो ने डीआईजी शुएब सडल, एसएसपी वाजिद दुरानी और एसएसपी रमजान चन्ना का नाम लेकर कहा कि ये सियासतदान बने हुए हैं। ये अखबारों में बयान दे रहे हैं कि हम मुर्तजा भुट्टो को गिरफ्तार कर लेंगे। घर के इर्द गिर्द मोबाइल लगाई है। जो लोग मौत से नहीं डरते तुम उन्हें जेलों से डराते हो। मैं खड़ा हूँ, आओ गिरफ्तार करो। ये मेरा आईनी हक है। सियासी फर्ज है कि अगर मेरा कोई कारकुन गिरफ्तार हो जाए तो मैं उसके पीछे जाऊं। आइन में है कि एमएनए एमपीए अवामी शिकायत पर जा सकते हैं थानों में। हम सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे। मुर्तजा भुट्टो ने कहा कि अगर अली सिनारा को कुछ हुआ, अगर उसका खून किया तो याद रखो अवाम उसका फैसला करेगी। मुर्तजा भुट्टो सुरजानी टाउन का ये जलसा खत्म करके घर जाने के लिए रात करीबन 8:30 बजे क्लिफ्टन की शारा ईरान नामी उसी सड़क पर पहुंचे जहां एक जानिब जाने वाला रास्ता उनके घर की सिमत जाता है। उसी सड़क पर पुलिस उनकी आमद की मुंतजिर थी। इसके बाद क्या वाकयात रूनुमा हुए ये आप जान पाएंगे इस पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में। इस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट के मुसन्निफ हैं सहाफ़ी जाफर रिजवी। आप उनका तहरीर करदा आर्टिकल bbcurdu.com पर भी पढ़ सकते हैं।